What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 23rd of July and today was Sensex weekly expiry. Yesterday, the markets dilly-dallied around 24,000 levels and multiple attempts markets ne kiya to actually break 24,000, but every single attempt was sold into, and towards the end of the day, markets 24,000 ke aaspaas hi close diya, and we discussed that 24,000 might not hold and 24,000 levels might get cracked, and today the markets opened with a 100-point gap down. 23,900 ke aaspaas open hua, and the first one the markets kind of recovered these gap down losses, went to 24,000 levels and 24,000 levels के आसपास फिर से sellers activate हुए. 24,000 exact level पे markets फिर से नीचे आना शुरू किया. It hit the day low, it broke the day low, and finally the markets have given a close around the day low at 23,850 levels. Now the news from the geopolitical front is not at all promising. In fact, looks like things might get a little worse because at this point both the sides are actually threatening to attack civilian locations and nuclear sites, which means that there is gonna be a lot of ugly things that are gonna happen if they start to act on their threats. Now, crude oil is trading at 8,700, Brent is trading at $98, and the IVs on the crude are shooting through the roof, and looks like the markets are bracing for an impact. So this weekend is going to be very important, and कल markets कहाँ पे open होके close करेगा देखना पड़ेगा. And to talk about today's expiry, it was probably the most volatile expiry of this month. हमने last दो expiry से ये expect कर रहे थे कि markets ने एक volatile expiry दिखाएगा, and today was that day. And in the morning, first the calls doubled and then the puts doubled, and yet again the calls tripled, and after that the markets came down and broke the day's low, and puts went almost 8 times. All was good because there was a linear decay in the straddle, because the straddle opened at 350 from 500 close yesterday, and throughout the day there was a linear crush in the straddle. At no point, in spite of this massive delta move, there was spike in the straddle as such. So as long as you managed your deltas and as long as you constantly delta hedged your positions, you would be all right. But post 2 o'clock, the volatility was on the next level, where there were multiple chops where the premiums went 5-6 times in a matter of minutes. And even in the last half an hour of the trading session, there was massive volatility, and this we kind of expected and we did position accordingly, and in spite of this volatility we came out all in good green. So tomorrow is Friday, and markets are looking little weak because 24,000 clearly breach हो चुका है. 23,850 के आसपास markets trade कर रहा है. So if at all we see another gap down tomorrow below the current support level of 23,800, looks like it might initiate a next level of selling. So we're going to discuss all this. Let's get to the terminal. All right, आज का expiry जैसे हमने प्रिपेयर किए थे वैसे ही प्ले आउट किया. हमने डिसाइड किए थे कि अगर मार्केट्स गैप डाउन होता है तो दैट्स गोना बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली शॉर्ट द स्पाइकिंग पुट्स. तो यहाँ पे हम लोग पुट शॉर्ट किया, एंड हमने बोले थे कि अगर मार्केट्स इधर तक वापस रिट्रेस करेगा, स्पेशली निफ्टी 24,000 के आसपास आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कॉल्स को भी ऐड करके इसको इधर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट्स रिवर्स भी किया, एंड कहीं ना कहीं मार्केट्स जहाँ पे हमारा सेल लेग था उसी के आसपास एग्जैक्टली क्लोज दिया है. तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कल का एक्सपायरी प्लानिंग के हिसाब से आपका भी आज पोजीशंस बने, एंड इफ़ यू कुड एक्चुअली मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स टुडे. ठीक है. Other than that, today's expiry was quite volatile. You can notice that first 15 minutes में ही calls and puts दोनों double हो गए थे, and उसके बाद again the calls got tripled, and उसके बाद puts almost 5-6 times यहाँ पे बन गए, and post 2:30 it was a gamma mania, probably the most volatile expiry of this month so far. But again, most volatile expiry अभी तक है because we have 2 more expiries coming next week, which are the monthly expiries, and I'm expecting monthly expiries to be, if not more volatile, at least as volatile as what we saw today. ठीक है. तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इज़ एट अ वेरी क्रूशियल जंक्चर हियर. आप देख सकते हैं कि लाइक मल्टीपल टच पॉइंट्स है, मल्टीपल बाउंसेस इस लेवल से आया है मार्केट्स को 23,800 के आसपास, एंड आज भी थोड़ा बहुत बाउंस आया है, बट इट इज़ नॉट अ कन्विंसिंग काइंड ऑफ अ बाउंस, बिकॉज एवरी टाइम द मार्केट्स हैव बाउंस फ्रॉम हियर. मार्केट्स ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स ट्रैवल किया है. 24,300 24,400 के आसपास मार्केट्स पहुंचा है. बट अगर कल मार्केट्स ने ये लेवल को तोड़ता है, इट्स गोना बी अ सेल ऑफ. कल एक ट्रेंडिंग डे आ सकता है. तो टुमारो वी आर
गोइंग टू ट्राई टू कैप्चर द ट्रेंड, ठीक है। यस, ट्रेंड कैप्चर करने में प्रॉब्लम यह है कि हिट रेट कम रहता है, बट एंड ऑल्सो आपका स्टॉप लॉस जाने का चांसेस भी रहता है। बट अगर मार्केट इस बार ये लेवल को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू कम एटलीस्ट टिल 23,300 लेवल्स। अगेन दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज वॉट आई एम प्लानिंग फॉर, एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल द टाइम, ठीक है। सो स्ट्रैडल्स टुडे, निफ्टी स्ट्रैडल ऑफ कोर्स लाइक काफ़ी अच्छा डीके भी मिला है 310 से लेके 253 तक, बट व्हेन द मार्केट्स स्टार्टेड ब्रीचिंग द डे स्लो अगेन देयर वाज अ स्पाइक इन द स्ट्रैडल, अराउंड 20 पॉइंट्स का स्पाइक देखने को मिला था। बट नॉनदलेस मार्केट्स 250 के आसपास ही आके स्ट्रैडल क्लोज दिया है, विच मीन्स दैट markets are not expecting some sort of a big gap up or a big gap down, but rather a slow grind towards the downside. But again फिर से देखना पड़ेगा कि whether this time this particular consolidation is gonna get breached, 23,800 को breach करके 23,500 तक पहले हम पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप खड़ा है, राइट। तो ये गैप अगर फिर क्लोज होने के लिए मार्केट आएगा तो कम से कम 23,600 तक मार्केट्स को आना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस रेंज से वापस हम नीचे के रेंज में शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, और वेदर वी आर गोइंग टू अगेन ग्रेविटेट बैक टुवर्ड्स 24,000 लेवल, विच हैज़ बीन हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। सो लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो ऑफकोर्स डेफिनेटली नो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स टुमारो व्हाटसोएवर। चाहे कल 50 पॉइंट का स्पाइक भी मिले स्ट्रैडल पे, अवॉइड डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स, बिकॉज मार्केट्स 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड अगर मार्केट्स एंग्जाइटी के साथ वीकेंड को एंट्री करेगा तो देन एक्सपेक्ट स्ट्रैडल स्पाइक, एंड स्ट्रैडल विल नॉट लूज इट्स वैल्यू थ्रू आउट द एंटायर कोर्स ऑफ टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो नाउ look at this, the markets are clearly forming a lower high and lower low kind of a pattern, right? तो कल हम भी इसी पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करने को ट्राई करेंगे। Now tomorrow it is a sell on rise or sell on rise or सेल ऑन ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ मार्केट, ठीक है। कल का जो हमारा ट्रेडिंग का थीम रहेगा, ये थीम लेके हमको ट्रेड करना पड़ेगा। नाउ सेल ऑन राइज कहाँ पे होगा? लेट्स से मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा तो हम लोग ब्रेक डाउन को ट्रेड करेंगे। दिस वुड बी आवर स्टॉप लॉस, दैट इज समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड ऑफकोर्स 1:1 का हम टारगेट रख के हम ट्रेड कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ओपन हुआ एंड यहाँ पे लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करके यहाँ पे आएगा, तो देन विल अगेन ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट समवेयर अराउंड 23,900 लेवल। यहाँ पे हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ 30-35 पॉइंट्स के रिस्क के साथ हम लोग एक डाउन साइड ट्रेड हम ले सकते हैं। एंड अगर हमारा ट्रेड वर्कआउट हो जाता है, इवन इफ द मार्केट कम्स एंड टचेस दिस डे लो अगेन, देन ऑल्सो इट्स अ 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड। एंड गलती से अगर मार्केट डे लो को ब्रीच करके 12 o'clock के बाद, लेट्स से वीकेंड को मार्केट्स एंग्जाइटी के साथ अप्रोच कर रहा है, एंड इफ द मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल, इट्स गोना बी अ गुड 1:5, 1:6 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो मेरे लिए द बेस्ट स्ट्रक्चर वुड बी हियर, लाइक मार्केट यहाँ पे ओपन करे एंड फर्स्ट टिक पे मार्केट्स में थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए, एंड यहाँ पे जब मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे पैटर्न दिखेगा तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कम रिस्क के साथ काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड कैप्चर करने का मौका मिलेगा। नाउ दूसरा सेल ऑन राइज कहाँ पे आ सकता है कि अगर मार्केट 24,000 लेवल्स को टच करता है, देन ऑल्सो वी कैन गिव अराउंड 50 पॉइंट्स ऑफ रिस्क, 50 पॉइंट्स का एक रिस्क, 50 पॉइंट्स ऑफ स्टॉप लॉस लेके हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से 24,000 से लेके मार्केट 23,800 के आसपास भी आएगा, देन ऑल्सो इट्स गना बी अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। तो दो ही ट्रेड्स बनेंगे कल, एक सेल ऑन राइज एंड सेल ऑन ब्रेकडाउन। बेसिकली ब्रेकडाउन पे हमको सेल करना है एंड रेजिस्टेंस पे हमको सेल करना है, ठीक है। तो 24,000 इज प्रूविंग आउट टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ, बिकॉज कल भी मार्केट्स मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे 24,000 को ब्रीच करने को ट्राई किया, बट मल्टीपल टाइम्स 24,050, 24,030 के आसपास सेलिंग आया है। एंड टुडे ऑल्सो आफ्टर द गैप डाउन द मार्केट हैज ट्राइड टू रिट्रेस टू 24,000 लेवल्स, एंड 24,000 लेवल से काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया है, ऑलमोस्ट एक लीनियर 200 पॉइंट का सेल ऑफ आया है। तो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज सम सॉर्ट ऑफ supply zone. This has been established as some sort of a supply zone. तो अगर गलती से 24,000 लेवल्स के आसपास मार्केट्स आएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट्स में कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया एंड मार्केट्स 24,100, 24,200 पहुंच जाता है कल, दैट टू गोइंग इनटू द एक्सपायरी, वेल एंड गुड। इट मीन्स दैट मार्केट्स के पास ज़्यादा डर नहीं है गोइंग इनटू द वीकेंड्स, एंड हम स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं। इफ अट ऑल 30, 40, 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दो। नाउ
एक चीज जो है विच इज अ स्लाइटली हाई रिस्क इज दिस, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड फर्स्ट 3-4 मिनट में मार्केट डे लो के आसपास आ गया एंड मार्केट्स जाना शुरू कर देता है। तो बोथ इवन इफ यू ट्रेड द ब्रेकडाउन और इवन इफ यू ट्रेड द रीटेस्ट, देन द लॉजिकल स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स एंड यहाँ पे आपको 1:1 के आसपास ही ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो वेल एंड गुड, बट इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल सकता है। तो एज आई सेड, द बेस्ट सिनेरियो वुड बी यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए या थोड़ा बहुत यहाँ इवन गैप डाउन यहाँ पे 23,780 के आसपास ओपन हो जाए, वापस रेंज के अंदर आ जाए एंड कहीं ना कहीं इस एरिया में, दिस इज लाइक टुडेज ओपन एंड यहाँ पे जो मल्टीपल टच पॉइंट्स है, इस रेंज में अगर हमको वापस एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ कैंडल या डबल टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल मिल जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे कैंडल मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकता है। नाउ बाइंग ट्रेड कब होगा? मान लो अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, व्हेन आई से बड़ा गैप डाउन, लाइक मोर देन 250 पॉइंट्स, लाइक निफ्टी समवेयर अराउंड 24,000, राइट? तो 1% से ज़्यादा गैप डाउन अगर हमको मिल जाता है 250 पॉइंट से ज़्यादा, दैट इज 23,870 है, मान लो कि 23,600 के आसपास, अगर 650-600 के आसपास यहाँ पे अगर गैप डाउन मिल जाता है, तो देन हम लोग एक मीन रिवर्सन के लिए ट्राई करेंगे। सेम स्टोरी है, 5 मिनट का कैंडल के लिए वेट करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट का, एंड अगर उसका हाई ब्रीच होता है तो देन विल enter on the breach of the first 5 minutes का high and will keep the low of that first 5 minute का candle as some sort of a stop loss। and यहाँ पे हम 2 बार ट्राई करेंगे। फर्स्ट एंट्री अगर स्टॉप लॉस जाता है तो जाने दो, फिर से सेकेंड टाइम अगर जाता है तो एक री एंट्री भी ले सकता है। नाउ दिस ऑफर्स एक्सेलेंट रिस्क रिवॉर्ड फॉर मीन रिवर्शन ट्रेड एंड दिस इज प्योरली एन इंट्राडे ट्रेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बड़ा गैप डाउन आता है तो द शॉर्टर्स वुड काइंड ऑफ कवर देयर पोजिशंस एंड ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स। तो मार्केट वापस जैसे आज हमने प्लान किए थे, राइट, लाइक आज भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लान किए थे। दो वी नो दैट द मार्केट इज बेरिश ऑन अ पोजिशनल फ्रंट, लार्जर टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो बेरिश चल रहा था, फिर भी हमने डिसाइड किए थे कि अगर गैप डाउन मिलता है तो पहले हम पुट शॉर्ट करेंगे एंड देन मार्केट्स रिट्रेस होने के बाद हम आके कॉल शॉर्ट करेंगे। ये हमने क्लियरली डिस्कस किए थे। तो कल भी सिमिलर काइंड ऑफ एक चीज़ होगा, बट इस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से कॉल्स ऐड नहीं करना है बिकॉज टुमारो इज नॉट एन एक्सपायरी। तो अगर मार्केट्स गैप डाउन खुलता है एंड आपको एक लॉन्ग ट्रेड मिलता है तो देन बुक योर प्रॉफिट समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, ठीक है? इधर बुक करो या पार्शियल बुक करके बाकी आधा क्वांटिटी का स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओ। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा तो देन यू वुड नॉट एक्चुअली लूज आउट ऑन द profits। Now these are the only scenarios for tomorrow। apart from that अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने को ट्राई करता है तो डोंट ट्राई टू गो लॉन्ग हियर, यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड मत लो बिकॉज मार्केट्स हो सकता है कि कल एक और दिन साइडवेज चला जाए, यहाँ पे चॉप कर दे एंड देन मंडे के दिन एक फिर से एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए बिकॉज सम और द अदर थिंग वुड हैव हैपेंड ओवर द वीकेंड। तो देन डोंट टेक दीज ट्रेड्स बिकॉज दीज आर नॉट वर्थ योर टाइम, दीज आर नॉट वर्थ योर रिस्क, दीज आर नॉट वर्थ योर एफर्ट, ठीक है? अगेन आई एम आस्किंग यू गाइस लाइक हाउ वाज टुडेज एक्सपायरी? Let me know in the comments because I do read your comments and I'll see you after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.